Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Forms of Energy and Energy Transfer. Today we are going to study the behavior of sound. So sound is also an energy, form of energy. और आज हम इसका behavior करेंगे, ये कैसे travel करता है, किस form में travel करता है. So my dear students, let's start the lecture with the recap. So here you can see previous lecture में we discussed about what is rainbow and how it forms. Rainbow क्या होती है और ये कैसे form होती है. Rainbow is when the light splits into 7 colors because white light has 7 colors, and when it passes through, when it changes the medium, it splits into the 7 colors. So what is refraction? When the light bends, it is called refraction. So my dear students, let's quickly move forward towards the activity. So here you can see 2 pictures. In one you can see the drum has been beaten, और दूसरी picture में आप देख रहे हैं कि glass को struck किया जा रहा है with the help of a spoon. Both produces sound. So quickly tell me, what is sound? The thing that you hear from your ears in the form of waves, it is also an energy, is called sound. So how does it produced? Whenever something beats, the sound is being produced. यानी कि कोई भी चीज जब beat होती है, जो चीजें आपस में टकराती हैं, तो sound produce होता है. Okay, my dear students. So my dear, in today's lecture, students will be able to familiar physical phenomenon, vibrating objects echoes to the production and behavior of sound. Relate familiar physical phenomenons of vibrating objects, यानी कि जैसे कि sound जो है वो vibrate करने से और echoes जो है वो किस तरीके से produce होते हैं, आज हम इस बारे में discuss करेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that did you ever hear a sound back in vacant hall? कभी किसी ओपन रूम में, एम्प्टी रूम में, जहाँ कोई ना हो या जहाँ पर फर्नीचर वगैरह भी नहीं पड़ा होता है, इट इज टोटली एम्प्टी, कभी आपने वहां जोर से आवाज दी हो, तो क्या आपको अपनी आवाज वापस सुनाई दी है कभी? या कभी आप किसी हिली एरिया में गए हो और वहां आपने किसी माउंटेन पे खड़े होकर जोर से आवाज दी हो, तो क्या आपको अपनी आवाज बाउंस बैक या दोबारा से अपनी ही आवाज सुनाई दी है? दिस इज कॉल्ड एको, और आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the reading. So I request you all to please open page number 73 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the pages. So now let's start the reading. Behavior of sound. A sensation of hearing is sound. So जो सुनने में हमें कोई भी sensation होती है, उसको हम sound कहते हैं, जो हम सुनते हैं अपने कानों से. तो हम क्योंकि अपनी हिस्सों से मुख्तलिफ चीजों को पहचानते हैं, जैसे लाइट को हम देख के पहचानते हैं, इसी तरह साउंड को हम सुन के पहचानते हैं. तो हेयरिंग में जो भी चीज आएगी, दैट इज साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. साउंड जो है वाइब्रेशन, दो चीजों की वाइब्रेशन की वजह से जो है वो पैदा होता है. हाउ? लेट्स ऑब्जर्व. द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द सरफेस ऑफ अ ड्रम इज हिट. वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जब आप एक ड्रम को हिट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस डेस्क को बीट करूं विद माई हैंड अगेन, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, इवन यू कैन फील इट. सो दिस इज हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. दीज वाइब्रेशंस कॉज मूवमेंट इन एडजेसेंट एयर. सो जब मैंने इसको बीट किया विद माई हैंड, सो व्हाट हैपेंड, इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और वो वाइब्रेशंस जो है एयर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती हैं. तो जो एयर इसके नजदीक है, उसके में जो है इसने मूवमेंट पैदा की, और उसकी वजह से जो है वो आपको साउंड जो है वो सुनाई देता है. द मूवमेंट कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई पार्टिकल्स अंटिल इट रीचेज आवर ईयर्स वेयर इट इज रिकग्नाइज्ड एज साउंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो साउंड है ये ट्रेवल करता रहता है, ये एयर के पार्टिकल्स के दरमियान जो है ये मूव करता रहता है, यहां तक कि ये हमारे कानों में दाखिल हो जाए और फिर हम इसको सुन सकते हैं.
So sound is produced because of vibrations and it travels through the medium क्या है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करके हमें सुनाई देता है? That is air. So each vibrating body produces sound through it might be very low. ये बहुत आहिस्ता भी हो सकता है. Stronger the vibration, the louder will be the sound. So जितनी देखें अब sound low या high हो सकता है. Less vibration, so low sound. More vibration, the louder will be the sound. So stronger vibration, louder sound. Less vibrations, less low sound. If we go away from the vibrating body, the loudness of the sound decreases. So अगर आप किसी vibrating चीज जो है जैसे कि for example I am beating the desk, तो मुझे इसकी आवाज ज्यादा loud और clear सुनाई दे रही है because I am very near to it. अगर मैं इससे बहुत दूर चली जाऊं और मैं किसी और से कहूं कि आप इसको बीट करें तो मुझे इसकी आवाज कम सुनाई देगी क्योंकि बिकॉज आई एम फार अवे तो उसको वेव्स को मेरे तक पहुंचने में टाइम लगेगा. बट इफ वी गो नियर टू द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी द लाउडनेस इंक्रीजेस. सो किस चीज के ऊपर लाउडनेस और लो साउंड जो है वो डिपेंड करता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस. इफ द वाइब्रेशंस आर हाई द लाउड द स्ट्रॉन्गर द साउंड विल बी लाउड. और अगर वाइब्रेशंस जो है वो लेस हैं तो साउंड जो है वो अपने आप लो हो जाएगा. एंड इफ यू आर अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर आप वाइब्रेशन से दूर हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर हैं, तब भी आपको जो है आवाज कम सुनाई या जो है लो सुनाई देगी. और अगर आप करीब हैं तो अपने आप जो आवाज है वो आपको स्ट्रॉन्गर लाउडर सुनाई देगी. Unlike light rays, sound waves do not travel in a straight line. So जैसे कि हमने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा, लेकिन जो साउंड है इट डज नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. They bend or scatter around obstacles. Due to this behavior, we can hear sounds from far off objects. So my dear students, जो sound है ये scatter होता है, ये bend हो जाता है, तो इस वजह से हमें बहुत दूर से भी sound जो है वो सुनाई देता है. ठीक है? So this is a beating drum. So when you hit it, struck it with the stick, the vibrations will be produced. और ये वाइब्रेशंस जो है ये ट्रांसफर होंगी इन द नियर बाय एयर और फिर ये आगे फर्दर जो है पार्टिकल से मूव करती हुई व्हेन दे विल एंटर इनटू समबडीज हेयर तो ही और शी विल लिसन इट एज अ साउंड. यानी कि जो कोई इसको सुनेगा उसके कानों में जब इस आवाज जाएगी तो फिर जो है वो साउंड रिकॉग्नाइज होगा. एकोज. अब एकोज क्या होते हैं? हैव यू एवर हर्ड बैक योर ओन साउंड? कभी आपने अपनी ही आवाज दोबारा सुनी है? इट हैपेंस व्हेन यू मेक साउंड इन अ बिग वैकेंट हॉल. यानी कि जब आप किसी बड़ी जगह में, जैसे अभी ये जगह जो है यहाँ फर्नीचर भी है और काफी चीजें पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से अगर मैं यहाँ हाँ आवाज करूं भी तो ये गूंजेगी नहीं. लेकिन इन अदर कंट्रास्ट अगर आप किसी एम्प्टी हॉल, किसी बड़ी खुली जगह में, हिली एरिया में अगर आप आवाज दें, जोर से बोलें, तो आपको अपनी आवाज जो है वो बाउंस बैक होती हुई सुनाई देती है. सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड इज कॉल्ड echo. Your own sound comes back after a short interval of time. It is made possible due to the sound reflection phenomenon. Sound waves strike the walls of the hall and bounce back. This reflection of sound is called echo. So bouncing back of the sound, यानी कि आपकी आवाज जब टकरा कर वापस आप तक आती है, this is called echo. तो हिली एरियाज में भी होता है, माउंटेन से स्ट्रक होकर आवाज जो है वापस आप तक आती है. इसी तरह एक एम्प्टी हॉल में भी जब आप आवाज देते हैं तो उसकी वॉल से स्ट्रक होके आवाज जो है वापस आप तक आती है. जितनी ज्यादा चीजें होंगी, आवाज जब उनके साथ स्ट्रक होगी तो वो उस तरीके से बाउंस बैक नहीं हो पाती. Remember, the echo cannot be heard everywhere. For an echo to be heard, the distance of the source from the reflecting surface should be 17.2 meter. So आपको हर जगह एको जो है वो सुनाई नहीं दे सकता. इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपको एको सुनने के लिए आपको रिफ्लेक्टिंग जो जगह है जिससे आवाज टकरा कर वापस आएगी, आपको उससे जो है 17.2 मीटर्स अवे होना चाहिए. यानी कि इतना दूर आप होंगे तो आपको एको सुनाई देगा. इससे कम या ज्यादा दूर होंगे तो यू कैन नॉट hear the echo.
सो साउंड एकोज क्या होता है कि जब आप एम्प्टी हॉल में आवाज देते हैं तो आपकी आवाज जो है वो ट्रांसमिट होती है इनटू द एयर एज अ मीडियम और ये स्ट्रक होती है टू द वॉल्स एंड देन इट अगेन बाउंसेस बैक in the form of waves, and you can see they are in the form of waves. So here you can see different musical instruments जिनको जब इनके अंदर vibrations पैदा होती हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है जो हमारे कानों तक जाती है. So sound produced in waves, sound जो है ये हमेशा waves की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. echo जो है ये 17.2 मीटर्स अगर आप अवे होंगे बाउंसिंग बैक वॉल से तो तभी आप अपने एको को सुन सकेंगे. दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ योर ओन वॉइस. सो नाउ इज द टाइम फॉर evaluation. Quickly tell me what is sound. The sensation which is heard by the ears is called sound. How different sounds are produced? कैसे मुख्तलिफ sounds produce होते हैं? Through vibrations. So why we get some sounds louder and some low? कुछ साउंड जो है वो आपको लाउडर और कुछ लो क्यों सुनाई देते हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशंस एंड लो वाइब्रेशंस साउंड कैन बी हर्ड इन लाउडर एंड लो. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस कि अगर आप वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर हैं, इफ यू आर फार अवे देन द साउंड विल बी लो एंड इफ यू आर नियर टू द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट देन द साउंड विल बी लाउडर. What are echoes and how they are produced? So echo is the bouncing back of the sound and it is produced when the sound strucks back, bounces back. Okay, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और उसके बाद write the missing words from the word bank and complete the given sentence. तो यहाँ आपको word bank दिया है, fill in the blanks दी है जिनको आपने complete करना है. Sound is produced by vibrations. Vibrations travel to the eardrum. Sound travels through air. Sound travels through. Sound cannot travel through vacuum. This is being repeated. Sound which is reflected back is called echo. Okay, my dear students, which observer will hear loudest sound and why? कौन सा observer जो है वो sound को loud सुनेगा? The first which is near to the microphone, near to the speaker, or the one who is away from the speaker? Obviously, he will listen loudest sound. And why? Because he is near to the vibrations. Okay, now is the time to note down your homework. For homework, you will do project 2 given on page number 74 and you will do question number 2 from section C given on page number 80. So my dear students, let's quickly do the projects. For project, create your own musical instrument. So use string paper cups to create a simple telephone. A model telephone has been shown in picture A. So my dear students, this is the model telephone और ये किस तरीके से बनाना है? It is very simple. आपको 2 पेपर कप्स चाहिए. You need 2 paper cups and you also need a string. ठीक है, तो आपने you have to make holes. आपने दोनों पेपर कप्स में होल्स करने हैं and you have to put the string through it और उसके बाद आपका फोन जो है वो तैयार हो जाएगा. आप इसको काफी लंबा बना सकते हैं and kids talk in it और इसके बाद it can be heard from this side. ये जिसके पास होगा उसको उसकी आवाज जो है वो आएगी इजीली इस तरीके से. सो इसको कान पे रखते हैं और इधर से बोलते हैं तो kids do this और ये बड़ा फन प्रैक्टिकल होता है. So you can make this telephone very easily with the help of paper cups and string. Next we are going to make a musical instrument. ये हम कैसे बनाएंगे? Let's have a look. Design a musical instrument using easily available materials such as an empty shoebox, rubber bands of different widths. A model has been given in picture number B. You will observe that different widths of rubber bands produce different sounds. Can you tell the reason? Okay, my dear students, so here you can see हम इस तरह का एक musical instrument बनाएंगे और हमें क्या चाहिए? We need very easy things जो कि बड़े आराम से आपको घर में मिल जाएंगी. All we need is a box. हमें एक box चाहिए. और हमें कुछ रबर बैंड्स चाहिए. इस तरह से हम रबर बैंड्स लेंगे
और मैंने डिफरेंट विड्थ के साथ जो है इसको अटैच किया है एंड नाउ आई विल शो यू कि आपको किस तरह इनकी आवाज आएगी। ये देखें, आप आवाज में आपको डिफरेंस फील करना है, ठीक है? कैन यू फील द डिफरेंस? तो इसकी जो आवाज है वो थोड़ी लो है, वेयर एज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। विद डिफरेंट वर्ड्स यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट साउंड्स, ठीक है? आपको मुख्तलिफ तरह के साउंड जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। सो दिस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार को इसी जो है तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ऐसा क्यों है कि हमें मुख्तलिफ तरह की आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस हैं वो जितनी स्ट्रांग होंगी, जितना टाइट एक बैंड होगा उतनी ज्यादा जो है वो उसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी। जितना वाइब्रेशन लेस होगी उतना ही साउंड जो है वो लो होगा। इसी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो है वो सुनाई दे रहे हैं बिकॉज द विड्थ इज चेंज्ड। नेक्स्ट यू विल डू हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यू विल डू इट इन योर नोटबुक्स। And next is the wrap up. So the important points for today are: sound is sensation of hearing that is produced by vibrations or vibration of the objects. When we are near the object, we hear louder sounds. When we go away, the sound becomes low. Echoes are sound waves that bounce back, that means reflect from walls of a vacant hall. So my dear students, I hope now you know about sound, how they travel, and what are echoes, how different sounds are produced, कैसे vibration के through sound produce होता है. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.